अभय चरणार भक्ति वेदांत स्वामी श्री महाराज की जय। स्कंद संस्थापक आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी श्री महाराज की जय। नित्य लीला प्रतिष्ठ जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज अनंत कोटि वैष्णव नामाचार्य जय भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टनाथ रघुनाथ सर्वस्वयं जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्री 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 राधा कृष्ण गोपिनाथ श्री राधा कुंड श्याम कुंड श्री गिरिराज गोवर्धन जी महाराज की जय। जय श्री श्री ब्रज वृंदावन धाम की जय। श्री नवदीप मायापुर धाम की जय। श्री क्षेत्र श्री पुरुषोत्तम धाम की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की जय। श्री द्वारिका धाम की जय। श्री बद्रिका धाम की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। गंगा देवी जमुना देवी की जय। वृंदा देवी तुलसी महारानी की जय। जुग धर्म भुवन मंगल से हरिनाम संकीर्तन की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। निताई गौर सीताराम हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। रिक्वेस्ट ऑल दी ऑडियंस काइंडली प्लीज से आगे आगे थोड़ा आ रहिए ताकि पीछे में भक्त आएंगे उनके लिए बैठने के लिए जगह बन जाएगी। रिक्वेस्ट ऑल दी ऑडियंस काइंडली प्लीज मूव फॉरवर्ड सो द डिवोटीज कैन कम एंड सिट बिहाइंड। हरे कृष्ण। एंड रिक्वेस्ट ऑल द डिवोटीज टू काइंडली टेक अप देयर फोन्स ऑन और कुछ समय के लिए आप अपना फोन जो है भागवतम का श्रवण करने के लिए कृपया अपना फोन आप म्यूट पे डाल दीजिए। We are very very blessed today to have that association of His Holy Bhakti Ashray Vaishnav Swami Maharaj for my own spiritual purification and for everyone's benefit. I would take this opportunity to welcome Maharaj. Maharaj appeared in year 1961. He came in contact with ISKCON in 1984 and he joined as a full-time devotee in Vrindavan in 1985. Maharaj received his Harinam initiation from His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj in 2013 on the auspicious day of the appearance day of Vairagya Murti Srila Gaur Kishore Babaji Maharaj. He accepted the renounced order of life. Maharaj sings wonderful Vaishnava bhajans very beautifully and melodiously. Maharaj focuses on establishing loving relationships with devotees and everyone else. He is very famous for his nectarian lectures in various languages, especially Hindi, English, Oriya, Bengali, and has a deep understanding on the Vedic Vaishnava literature. Maharaj is known for his simplicity and humility. Currently, Maharaj is serving as a zonal supervisor of Mewar region of Rajasthan, Himachal and NCR, and traveling across the world, across India and several parts of the world in spreading Krishna consciousness. He also served as a secretary of Myanmar. Maharaj travels all around in India for spreading Krishna Bhakti. Few days back on the appearance day of His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj, he has taken vow of initiating Guru in ISKCON. So big Hari Bol for Maharaj. We will chant 3 times loudly and lovingly Hare Krishna mantra in welcoming Maharaj. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
devotees who are joining now, please kindly keep your phones on silent for Maharaj Sir. कम फॉरवर्ड और आगे आगे आ जाइए सभी, आगे Yes. माता जी also can move forward. आगे बहुत जगह है आ सकते हैं। So that devotees can come from behind. पीछे से devotee आएंगे तो कृपया आप लोग अभी आगे आ जाइए। So start. Yes, Maharaj. It's in Hindi. Yes, yes. Hari Bol. South Indians, they also understand Hindi. तो क्योंकि अब गुरु पूजा जय ध्वनि कर चुके हैं तो आई एम नॉट गोइंग फॉर भजन, और भजन और नहीं गाते हैं, सीधा शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो आज जब मैं आ रहा था आप लोग का संग लेने के लिए तो स्वयं में प्रभु को मैं पूछा, वो बोले कि वहाँ से मैसेज आया कि दे वांट टू हियर रामलीला। बोला ऐसे तो हमारा ये संस्था के नियम है, नित्य प्रति भागवत श्रवण होना चाहिए और सुबह भागवत होता है, शाम को गीता सीसी और भी कुछ कर सकते हैं, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन मणि भागवत में 8 to 9 isn't it? तो बोले दे हैव फॉरवर्डेड मैसेज दे वांट रामलीला और गौरलीला, और दोनों ही तो नित्य नहीं हमारा इधर भागवत के नियम है। तो ओके देन वी कैन रीड भागवतम, रामलीला फ्रॉम भागवतम। श्रीमद् भागवत महापुराण में जब श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को उपदेश दे रहे थे अपने मरते समय में, तो उन्होंने शॉर्टकट में रामायण भी बोले, 2 अध्याय में रामचरित बोले, और उस 2 अध्याय में से एक श्लोक हम लेंगे और उसमें जितने हम इस मोटे बुद्धि में जितना आएगा इतने आप बोलने की प्रयास करेंगे। ये श्रीमद् भागवतम के 9वां स्कंद के 10वां अध्याय का 3 नंबर श्लोक 9, 10, 3। रेडी? चैंट। तस्यानुचरितं राजन् ऋषिभिः तत्त्वदर्शिभिः श्रुतं हि वर्णितं भूरि त्वया सीतापतेर्मुहुः। तस्यानुचरितं राजन् ऋषिभिस्तत्त्वदर्शिभिः
श्रुतं हि वर्णितं भूरि त्वया सीतापतेर्मुहुः। और एक बार तस्यानुचरितं राजन् ऋषिभिः तत्त्वदर्शिभिः श्रुतं हि वर्णितं भूरि त्वया सीतापतेर्मुहुः। किसी ने तस्यानुचरितं राजन् ऋषिभिस्तत्त्वदर्शिभिः श्रुतं हि वर्णितं भूरि त्वया सीतापतेर्मुहुः। यद्यपि मुझे क्लास हिंदी में बोलने के लिए बोला गया है, लेकिन पुस्तक अंग्रेजी में दिया गया है। तो मेरा क्या कर्तव्य होना चाहिए? अंग्रेजी में पढ़ूं, हिंदी में बोलूं? हाँ, मिक्स। भाई बुक्स तो इंग्लिश का है ना, पढ़ना पड़ेगा इंग्लिश में, बोलना पड़ेगा हिंदी में। दैट इज पॉसिबल ओनली। ओके, आर यू रेडी फॉर इट? ओके। वर्ड मीनिंग तस्या of him, the supreme personality of Godhead, भगवान रामचंद्र। अनुचरितम ट्रांसेंडेंटल एक्टिविटीज। राजन, ओ महाराज परीक्षित। ऋषि भी, the great sages or saintly persons, Tattvadarshibhi, by persons who know the absolute truth, Sritam, have all been heard. He, indeed, Varanitam, as they have been so nicely described, Bhuri, many, Tvaya, by you, Sitapatehe, of Lord Ramchandra, the husband of Mother Sita, Muhu, more than often. Anuvada Venkatparya, translation and purport by His Divine Grace, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki Jai. Translation. O King Parikshit, the transcendental activities of Lord Ramchandra have been described by great saintly persons who have seen the truth. Because you have heard again and again about Lord Ramchandra, the husband of Mother Sita, I shall describe these activities only in brief. Please listen. Purport. Modern Rakshasas. Have you heard about modern Rakshasas? Modern Rakshasas, posing as educationally advanced merely because they have doctorates, have tried to prove that Lord Ramachandra is not the Supreme Personality of Godhead, but an ordinary person. But those who are learned and spiritually advanced will never accept such notions. They will accept the descriptions of Lord Ramachandra and his activities only as presented by Tattvadarshis, those who know the absolute truth. In Bhagavad Gita 4:34, the Supreme Personality of Godhead advises
तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदख्यन्दिते ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिभिः. Just try to learn the truth by approaching a spiritual master. Inquire from him submissively and render service unto him. The self-realized soul can impart knowledge unto you because he has seen the truth. Unless one is Tattvadarshi, in complete knowledge of the absolute truth, one cannot describe the activities of the personality of Godhead. Therefore, although there are many so-called Ramayanas or histories of Lord Ramachandra's activities, some of them are not actually authoritative. Sometimes Lord Ramachandra's activities are described in terms of one's own imaginations, speculations, or material sentiments. But the characteristics of Lord Ramachandra should not be handled as something imaginary. While describing the history of Lord Ramachandra, Sukadeva Goswami told Maharaj Parikshit, "You have already heard about the activities of Lord Ramachandra. Apparently, therefore 5,000 years ago, there were many Ramayanas or histories of Lord Ramachandra's activities. And there are many still, but we must select only those books written by Tattvadarshis, Jnaninam Tattvadarshibhi, not the books of so-called scholars who claim knowledge only on the basis of doctorate." This is a warning by Sukadeva Goswami. Receive his Tattvadarshibhi. Although the Ramayana composed by Valmiki is a huge literature, these same activities are summarized here by Sukadeva Goswami in few verses. ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सर्वजातं सहगणं रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. Sukadeva Goswami is telling this to Parikshit Maharaj. Sukadeva Goswami Parikshit Maharaj को बोल रहे हैं कि तस्या अनुचरितम राजन, हे राजा, तस्य कस्य रामचंद्रस्य, रामचंद्र के चरित्र, तस्य अनुचरितम, हे राजा, रामलीला के बारे में बड़े बड़े तत्वदर्शी महात्मा, ऋषि मुनि ज्ञानी बहुत बोले हैं और श्रुतंग ही वर्णितंग, आप सुने भी बहुत है, बहुत बार सुन चुके, रामायण कथा हो चुका है, लेकिन भागवत तो अभी होने जा रहा है. मतलब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं तू तो सैकड़ों बार रामायण सुने होंगे, लेकिन भागवत तो आज मैं तुझे सुनाने जा रहा हूँ. भागवत पहले, रामायण इज वेरी वेरी ओल्ड लिटरेचर. रामायण इससे भारतवर्ष में इतने जन जन में छाया हुआ है राम कथा. गांव गांव में एक दूसरे को मिलते तो राम राम भाई बोलते कि नहीं, कृष्ण कृष्ण नहीं बोलेंगे, राम राम तो बोलेंगे. यहाँ तक भी ब्रज लीला में वर्णन आता है, जब नंद बाबा उनके परिचित लोग मिलते थे तभी राम राम बोलते थे. जिनके बेटा कृष्ण थे वो भी राम राम बोलते, क्योंकि रामायण इतने छाया हुआ है. तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं 5000 साल पहले कि श्रुतंग ही वर्णितंग भूरी, बड़े बड़े ऋषि मुनियों की तरह बहुत बहुत रामचरित गाया हुआ है, तो बहुत बार सुना भी है. रामायण इतने
एडवर्टाइज हो चुका है। कृष्ण चरित्र इतने अभी नहीं हुआ जितने रामचरित्र रामलीला पहले का। भूरी त्वया सीतापतिर मोह, सीतापति त्वया मतलब आपके द्वारा बहुत बार वर्णन और श्रवण किया हुआ है। किसका बारे में? सीतापति। यहाँ डायरेक्ट रामचंद्र के न कह करके सीतापति। भगवान को ये परोक्ष भाव समझ बहुत पसंद है। सीधा सीधा बोलने से इतने खुश नहीं होंगे, इनडायरेक्टली खुश होते हैं। तो परोक्ष भाव, तो इसलिए सीतापति हो, सीता देवी के पति भगवान रामचंद्र के बारे में बहुत ऋषि मुनि आपको सुनाए, आप सुने। इसमें वर्णन आता है कि रामायण 7 कोटि प्रकारा। कितने प्रकार के रामायण है? 7 कोटि मतलब 100 करोड़ प्रकार के रामायण, वेराइटीज, 100 करोड़। अंदाज लगा सकते हैं कौन सा रामायण से क्या बोलते? 100 करोड़ रामायण है। इतने हमारे पास तो 10-5 होगा भारतवर्ष में। 100 करोड़ वेराइटी रामायण इतनी। मैंने सुना हो, एक महात्मा जी वर्णन कर रहे थे। आप लोगों से कोई चेन्नई से होंगे, तमिलनाडु से, है ना? नहीं, वहां पे रंग क्षेत्र में, श्रीरंग में एक ब्राह्मण थे और प्राचीन काल में उनका नियम था प्रतिदिन रामायण पाठ करें। रामायण पाठ करने के बाद वो प्रसाद ग्रहण करेंगे, नियम पूर्वक पाठ करते थे। तो रामायण खुल करके पढ़े, पढ़ा नहीं जाता था उनसे। जब वो वनवास की ये जो वर्णन आता है, अब अरण्य कांड, उसको पढ़ करके रोना आता है। भगवान की जो वनवास लीला, ये तो बहुत दुखद है, तो रोना आता है उनको, और रोते ही रहते हैं, आगे बढ़ नहीं पाते। आगे बढ़ेंगे नहीं तो कंप्लीट नहीं करेंगे तो प्रसाद नहीं खाएंगे। शाम तक रोते ही रहे, कई दिन तक रोते ही रहे, खाने पीने नहीं रहे, मरने की नौबत आया। रंगनाथ आकर बोले, भैया तू क्या कैसे कर रहे हो? मुझे तो खाता पीता क्यों नहीं ना, मैं क्या करूं? मेरा नियम है रामायण पाठ करूंगा तब खाऊंगा, पाठ क्यों नहीं कर लाता? फिर कर लो, जाकर खाओ ना। कंप्लीट नहीं होता। क्यों कंप्लीट नहीं होता? मैं रोता हूँ, पढ़ा नहीं जाता मुझे। क्यों रोता है? ना क्या आप लीला ऐसे की? अब लीला ऐसे किए हैं कि मेरे रोकना नहीं जा रहा। आप ऐसे क्यों की? क्या आपको कोई भक्त बड़ा पसंद करते हैं, हमारे जैसे भक्त हैं, तो कुछ अच्छा लीला करना चाहिए था ना, ताकि हम इतने मत रोए, थोड़ा बहुत रोना चल जाएगा। इतने रोना, हम खाना पीना रुक जाता है। कुछ कभी ऐसे लीला नहीं करते क्या? हम क्यों कई बार ऐसे लीला का रोना पुना नहीं होता है, बढ़िया मजे से क्यों? बोले हमारे पास, बोले तुम्हारे पास नहीं, व्हाट इज माय प्रॉब्लम? तुम्हारे पास रामायण नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ? रामायण इतना बोलो, लेकिन मैं तो अनेक प्रकार का रामलीला कर चुका हूँ, कई हर प्रकार से हर बार आता हूँ। बोले ऐसा क्या है ना? हाँ है, कभी पैथेटिक रोल नहीं उसमें, रोना धोने का है ही नहीं पूरा रामायण में, ऐसा है ना? है तो फिर तो बोले मुझे दीजिए, मैं इसको पढ़ूंगा, फिर मेरे नियम पूरा करूंगा, मैं प्रसाद पाऊंगा। तो श्री रंगनाथ ने एक रामायण की कॉपी लिख करके उनको दे दी। बोले ये देखो, किसको नहीं बताना खबरदार, ये मेरे हैंडराइटिंग कॉपी में तेरा पर्सनल यूज के लिए, ये फिर मुझे वापस दे देना। ये और किसी को नहीं देना, प्रिंट आउट नहीं होना चाहिए, कॉपीराइट मेरा है ये, क्योंकि दुनिया में ये चलता नहीं है। मैं तो केवल आपके जीवन बचाने के लिए दे दिया। तो उसको पढ़ते थे, जिसमें भगवान का करुण लीला का वर्णन नहीं था। यही कहना था कि रामलीला करोड़ों प्रकार की है, हम 1-2 जानते हैं, इसको जान करके ऐसे 7 कोटि प्रकार है। तो ऐसे भगवान जानते हैं कितने लीला कितने प्रकार से किए हैं। तो भगवान राम के जो चरित्र है, इसको लोगों को सुनने के लिए बहुत पसंद है, शिक्षापूर्ण है। इसलिए कि जो बड़े बड़े रामायणी कहते हैं कि राम के चरित्र में मनुष्य को मनुष्यता प्राप्त होता है। क्या? मनुष्य को एक अच्छे मनुष्य बनने का शिक्षा रामचरित्र से प्राप्त होता है। भगवान राम ने एक आदर्श पुत्र
आदर्श मनुष्य, आदर्श राजा, आदर्श पति, सब कुछ आदर्श। मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं ना, बिल्कुल लिमिट, मर्यादा का लिमिट पालन की। मर्यादा कहते हैं उसको जो जहां सीमा होता। तो जो डिजिट है 1 2 3 4 उनका सीमा कहाँ है? सिंगल डिजिट का लिमिट 9, उसके बाद डबल डिजिट हो जाएगा, है कि नहीं? तो भगवान का जन्मतिथि 9, सीता का जन्मतिथि 9, उनका हर काम 9, सो 9 में ही होने वाला। 9 में जितने 9 मिला सो 9 ही होगा, क्योंकि लिमिट में रहते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम वाले हैं, तो हर चीज में मर्यादा रक्षा करते हैं। 9 + 9 कितने होगा? 8 1। 9 में 3 गुना कितने होगा? 7 2 9 ही रहेगा। 9 में 4 गुना होगा कितना? 6 3। 9 में 5 गुना करो कितने होगा? 4 5 9। तो जितने पूरा गुना करते जाओ, 9 से ऊपर नहीं जाएंगे, नीचे भी नहीं आएंगे, मर्यादा में रहेंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम है। लेकिन हमारे ठाकुर जी आए कृष्ण, बोले भगवान क्या मर्यादा पालन करेगा? फिर भगवान क्या है? मैं जब नियम फॉलो करूंगा तो मैं फिर तो साधारण लोग हो जाऊंगा। नियम तोड़ने वाले भगवान होते हैं, उनके ऊपर कोई नियम नहीं चलता। तो इसीलिए सारे मर्यादा तोड़ने वाले आ गए। सारे मर्यादा, वो एक पत्नी व्रत, वो तो बिना शादी के भी बहू पर मैंने गर्लफ्रेंड रखा, है कि नहीं? चोरी नारी, ये तो उनका नॉर्मल था, नॉर्मल। भगवान का अष्टमी है, उनका 9 में चला ना, वो एक स्टेप डाउन 8 8 है। क्यों 8? 8 में 1 गुना करो 8, 2 गुना करो 7 होगा, एक एक घटेगा। देखो 3 गुना करो 6 होगा, 5 गुना करो 5 होगा, ऐसे घटते घटते जाएगा। सारे आएगा 1 से 9 तक सारे सारे, क्योंकि ये सब बोले सर्वगुण संपन्न, सकल गुण गणधाम, एक नहीं केवल लिमिट में रहूंगा। ये भगवान है, सब कुछ है इनके अंदर। तो रामचरित में भगवान की जो आदर्शता है, इतने आदर्श है कि 4 भाई थे, राम लक्ष्मण शत्रुघ्न भरत, लगभग सेम डे में, है कि नहीं? एक ही दिन का उनका जन्मदिन लगभग एक ही प्रकार से हुए थे सब। तो जब पढ़ने गए थे, राजा के बेटे हैं तो स्कूल में पढ़ेंगे, अच्छा एक्सपेंसिव स्कूल में तो पढ़ते थे। वहां हमेशा जानबूझ करके, जो बाकी तीनों भाई हो, जानबूझ कर कम नंबर रखते थे कि बड़े भाई बड़े रहना चाहिए, यही हमारा मर्यादा है, हमेशा रखते। तो भगवान राम भी बोर हुए, हमेशा मुझे ही प्रणाम करते हैं, मुझे ज्यादा मार्क मिलता है, मुझे सबसे ऊंचा सीट मिलता है, ऊंचा, मैं भी थोड़ा नॉर्मलाइज हूं, है ना? तो एक दिन स्पोर्ट्स हो रहा था, स्पोर्ट्स में चारों भाई रॉयल प्रिंस से खड़े हुए। तो स्पोर्ट्स टीचर बोला कि देखो मैं 1 2 3 4 स्टार्ट, और दौड़ना शुरू करना, पोजीशन लेकर खड़ा हो, दौड़ना। तो एक दूसरे को देखते हैं, कोई पोजीशन नहीं ले रहे, सब ढीला ढीला खड़े हैं। तो 1 2 3 4, अरे भाई रेडी हो जाओ, आप बोलिए ना। अरे मैं स्टार्ट बोलने वाला हूं, आप रेडी नहीं हो रहे, पोज नहीं हो रहे। ये बोलते हैं वो नहीं हो रहे, बोलते वो नहीं हो रहे। वो बोलना बंद कर दे, भैया मैं स्पोर्ट्स में, आप रेडी क्यों नहीं हो रहे, क्यों, क्या कारण है? राम पूछा, है राम आप स्पोर्ट्स में भाग लिए हैं, आप क्यों रेडी नहीं हो रहे हैं? बोले मैं इसीलिए रेडी नहीं हो रहा हूं क्योंकि हर चीज में मतलब फास्ट हो ही रहा हूं। एक बार मैं भाइयों को चांस देना चाहता हूं, ताकि मैं जानबूझ के रेडी नहीं होगा तो मेरे से आगे चले जाएंगे। कम से एक बात था, कम से कम नंबर 1 में हुआ है, मैं क्यों बोला 1 में? बोले अच्छा, बोले जानबूझ कर इसलिए मैं रेडी नहीं हो रहा। भरत को पूछे क्या हुआ आपके? हम कैसे रेडी होंगे, बच्चा साम जीत जाएंगे तो? ये नहीं होना चाहिए, हमेशा वो हमसे आगे रहना चाहिए। कभी हो नहीं सकता कि हम पीछे रह जाए, तो इसलिए मैं रेडी नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहे, मैं क्यों हूं? मैं फास्ट हो जाऊं, इसलिए नहीं होना चाहता हूं जानबूझ के। ये आंसर सभी ने दिए। बोले हम कभी बड़ा होना नहीं चाहते हैं उनके सामने, जब वो है वही, वो नहीं रेडी हो रहे, हम क्यों रेडी होंगे? रेडी होने से शायद हम उनसे आगे चले जाएंगे, इसलिए आगे नहीं जाना चाहते। वो हमसे आगे रहेंगे
हमेशा हम कभी उनका आगे नहीं जाना चाहते हैं, इसलिए हम तैयारी नहीं होते, तो कोई तैयारी नहीं होती। अब रामलीला में तो स्कूल कॉलेज तो गए नहीं थे ना, कृष्ण लीला में, क्योंकि वो वाले थे गाय चराने वाले थे, स्कूल कहाँ जाएंगे, नो एडमिशन नो एजुकेशन। उनका एडमिशन के बचपन से 2 साल के हुए, गोबर गोमूत्र में लोटपुट हुए, गाय के बछड़े के पूंछ पकड़ करके भागे और फिर बच्चा बाग छोटे बछड़े को चराने के लिए ले जाते थे। 5 साल का हो गए, प्रमोशन हो गया, सीनियर हो गए, गोपाल बन गए गाय चरा। ये उनका प्रमोशन जब था। तो एग्जाम में करना क्या होता है, अभी समझ तो होता नहीं, कछनी और लकुट ले करके सिंगा ले करके जंगल में घूमते थे, गाय बछड़ा अपना चरते थे, उनको चराना तो होता नहीं था, बैठ कर सुन फिटिंग कर खिलाए, ये तो होता नहीं था। वो अपना घास फूस चरते थे, वो खेलते थे, खेल ही काम था उनको, कुछ नहीं था, ड्यूटी जो ओनली खेलते रहे, वो जंगल में करेंगे क्या, उनको खिलाएंगे क्या, वो अपने खाते थे, वो अपने खेलते थे। खेलते थे तो क्या खेलेंगे, स्पोर्ट्स, बोला मिलकर सब खेलेंगे, कबड्डी मैच, ये चोरी, जो तभी जमाने जो सब खेल था, मैच कर। तो वहां भी एक दिन उन्होंने रन करने के लिए खड़े हुए सर साथियों के साथ, बोले 1 2 3 स्टार्ट हो। तो जब 1 2 3 बोले सब तैयार रहते हैं, एक दूसरे, कृष्ण भी साथ में है, जानते हैं कृष्ण के पास दूसरे अर्जुन कृष्ण सुबल खड़े थे। 1 बोलते ही वो पैर घुमा करके उनके पैर से तो खींच देना चाहते हैं, उनको गिरा दो ताकि वो गिर जाए, मैं फास्ट हो जाऊं, समझ है ना भावना, ये कृष्ण लीला की भावना है। मैं इसको एक पलटी मारूं तो गिर जाए ताकि मैं जीत जाऊं। और वही रामलीला में, अरे बड़े हैं, मैं कैसे, डिफरेंस समझ में आता है, हाँ ये डिफरेंस, इसमें रस है। तो इस प्रकार की भावना होता है। तो भगवान राम इसलिए अपने आदर्शता को दिखाने के लिए, राजपुत्र हूं, इतने उदार चरित्र दिखाए भगवान की चरित्र कि पूरे अभी तक जब से सृष्टि बना अभी तक कोई ऐसे रिकॉर्ड में नहीं है कि जितने प्रकार के डिपार्टमेंट एक स्टेट में होता है, द मोस्ट एक्सपेंसिव डिपार्टमेंट कौन सा जानते हैं, आर्मी। उसमें कोई प्रोडक्शन था ही नहीं, ओनली एक्सपेंसिव। एक डिपार्टमेंट होता है ना, मिलिट्री डिपार्टमेंट में कोई आमदनी है क्या, केवल खर्चा ही है, उनको खिलाने के लिए खर्चा, रखने के लिए खर्चा, एनिमेशन के लिए खर्चा, ड्रेस के लिए खर्चा, अकोमोडेशन के लिए खर्चा, अरे गाड़ी घोड़ा, केवल खर्चा, ज्वाइन साहब के साथ रहते हैं। तो लड़ाई झगड़ा तो होता नहीं है कि नहीं। इसलिए आजकल पैसा दे दे कर आर्मी में भर्ती होना चाहते हैं लोग। पहले जमाने में राज राजोड़ा का समय था, हर साल में 2 बार 3 बार लड़ाई होता था और सम्मुख युद्ध होता था, और जितने जाते थे पता नहीं किसी का नंबर कब आ जाए, सम्मुख युद्ध होता था। तो पैसा देने पर भी नहीं भर्ती होते थे, नहीं आर्मी में नहीं जाएंगे, नहीं जाते थे। पकड़ पकड़ करके जबरदस्ती लेना, राजा को लेना पड़ता था, नहीं आपको घर में 3 लड़का है, एक आना पड़ेगा आर्मी में, ऐसे। लेकिन आजकल तो सारे को सारे जाना चाहते हैं आर्मी में, जानते कुछ काम नहीं करना पड़े, बैठे खाएंगे, सबसे खर्चा ज्यादा है कि नहीं। तो लेकिन भगवान राम जब पृथ्वी में त्रिलोक विजयी वीर था, रावण राक्षस था, पूरे 3 लोक में, स्वर्ग अमर्त्य पाताल में उनका जो आर्मी थे वेल ट्रेंड अप थे, सब राक्षसी थे, सब तो नॉनवेज ही खाते थे और क्या क्या, लेकिन इतने वेल ट्रेंड अप थे, इतने हाई मॉडर्न इक्विपमेंट्स, एनिमेशंस था उनके पास में, और जो उनके रॉकेट ये जो सब जान होता था उड़ने, सब हाई क्लास का होते थे, अच्छे अस्त्र शस्त्र, अच्छे तालीम, अच्छे गोला बारूद, अच्छे जान वाहन, अकोमोडेशन एंड प्रसाद, एवरीथिंग वाज सुपर डुपर। और उनके विरुद्ध में भगवान राम को युद्ध करना पड़ा, और उनके संख्या कितने थे, अरब खरब संख्या के थे राक्षस। तो भगवान के पास बोले, जंगल में थे, लड़ाई जब वो करने के लिए रावण से चैलेंज हुआ, युवा वनवासी, राज्य तो था नहीं, तो फॉलोअर थे नहीं,
एक सीता थी, वो भी किडनैप हो चुकी थी। अपना तो कोई रहे नहीं। लक्ष्मण तपस्या फास्टिंग कर घूमते, पत्नी गई किडनैप हो गई, राज्य है ही नहीं, जंगल, और नौबत आया लड़ना पड़ेगा त्रिलोक विजयी वीर राक्षस रावण के साथ, उनके सेना के साथ। तो भगवान के आर्मी में किनको भर्ती किए? बंदर और भालू, बंदर ही थे मुख्य करके। तो एक आर्मी इतनी बड़े शक्तिशाली राजा के साथ, सेना के साथ लड़ने जा रहा है, ये प्रसिद्ध है आज तक सृष्टि के बाद कि आर्मी इज जीरो एक्सपेंस। मैं बताता हूं, कोई ऐसे कंट्री नहीं जहां आर्मी में खर्चा ना सबसे ज्यादा हो। मोर देन 50% ऑफ द एनुअल इनकम इज स्पेंड इन आर्मी ओनली, है कि नहीं? सबसे ज्यादा उनकी पैसा लगता है। लेकिन भगवान राम के जो आर्मी थे, इट वाज ऑफ जीरो एक्सपेंस। कोई विश्वास नहीं करेंगे, अरे यार हॉस्टल तो अकोमोडेशन तो देते होंगे, छावनी तो होगा, आर्मी कंटोनमेंट तो होगा। हाँ था कंटोनमेंट, तो अकोमोडेशन तो घर पर नहीं। उनका आर्मी ऐसा है कि घर में कोई रहने वाले नहीं, घर के ऊपर रहने वाले, घर के अंदर रहने वाले होते नहीं उनके आर्मी, है कि नहीं? सारे आर्मी ऐसे ही है ना, जो घर के अंदर बेडरूम जरूरत नहीं, अटैच बाथरूम जरूरत नहीं। ऐसे वेल ट्रेन्ड आर्मी है, नो नीड ऑफ अकोमोडेशन। जंगल में घूमेंगे, उनको छोड़ दो, फर्स्ट क्लास अकोमोडेशन उनका, पेड़ में घूमेंगे, शाखा मृग है, जीरो एक्सपेंस फॉर अकोमोडेशन। कोई बोले अच्छा घर बड़ नहीं, तो ऐसे तो मेस नहीं चलेगा। आर्मी मेस बड़ा है कि नहीं, फूडिंग तो होता ही होगा ना, फूडिंग भी जीरो। वो कैसे फूडिंग जीरो कैसे हो सकता है? क्या कुक पैसा नहीं लेता? नहीं, कुक जरूरत नहीं, गैस भी जरूरत नहीं, चूल्हा भी जरूरत नहीं, चम्मच की जरूरत नहीं, प्लेट की जरूरत नहीं, बकेट कुछ भी जरूरत नहीं, मसला कुछ भी जरूरत नहीं। क्यों? वो सब बॉयल सब्जी भी नहीं खाते, सीधा कच्चा ही खाते, किचन का जरूरत नहीं। और सब्जी मंडी जाना जरूरत नहीं, क्योंकि उस पेड़ से खुद खाते हैं। इसको क्या बोलते हैं? स्वपाकी जानते ना? स्वयं खाने वाले हैं और सब कच्चा खाने वाले, बॉयल सब्जी तक भी नहीं खाते। कोई प्लेट की जरूरत नहीं, सीधा लेकर खाते। तो फूडिंग में जीरो एक्सपेंस, एक पैसा नहीं, अकोमोडेशन में खर्चा नहीं, फूडिंग में खर्चा नहीं। बोले भैया चलो मान लिया, सैन्य है ना, लड़ाई करने का काम है, लड़ाई करने के लिए भाई एनिमेशन तो चाहिए कि नहीं? अस्त्र शस्त्र गोला बारूद, वो तो कोई पेड़ से उगता नहीं है, वो तो खरीदना ही पड़ेगा। बोले नो, वो भी जीरो एक्सपेंस है। जीरो एक्सपेंस एनिमेशन कैसे होते? गोला बारूद को जरूरत नहीं, बंदूक की जरूरत नहीं, क्योंकि ऐसा आर्मी थे ना बंदूक चलाना आता था, ना तलवार उठाना आता था। अरे भाई लड़े कैसे? नहीं, कैसे लड़े? दांत में काट खाते थे, पत्थर रखते थे। दोनों ही आता था उनको। पत्थर उठा के फेंकेंगे तो काट खाएंगे जाकर सीधा दांत में अटक। कोई गोला बारूद एनिमेशन तलवार अस्त्र शस्त्र कुछ भी नहीं, जीरो खर्चा, इसके लिए खर्चा नहीं। बोले भाई ऐसा नहीं, आप ट्रेनिंग तो देते होंगे, ट्रेनर तो होगा, कमांडर इन चीफ दी, कोई कमांडर कुछ नहीं, कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं। बंदर एक ही जाति होता है जो टोटली अनट्रेंड होते हैं, लेकिन बंदर है, नो नीड ऑफ ट्रेनिंग, उसके लिए भी खर्चा नहीं। बोले भैया ट्रांसपोर्टेशन तो चाहिए, कुछ नहीं हो जाएंगे कैसे? यहां से कह करके माल्यवंत गिरी से रामेश्वर तक जाना पड़ा, भाई ट्रांसपोर्टेशन जीरो एक्सपेंस, कोई गाड़ी घोड़ा नौका कुछ नहीं है, वही भाग दौड़ कर खुद चले जाए। बोले भाई ड्रेस तो पहनेंगे, आर्मी का यूनिफॉर्म घड़ी पक्का होता है कि नहीं? बूट पहनना पॉलिश करके, भले नहाएंगे नहीं 8 दिन तक, लेकिन बूट पहनेंगे, आयरन किया हुआ क्लॉथ और पॉलिश किया हुआ बूट। आर्मी में ये तो चलेगा, भले नहाओ ना खाओ, ये चलेगा, वो तो चाहिए पैंट शर्ट बूट, आर्मी के यूनिफॉर्म तो चाहिए, जीरो उसमें भी नहीं चाहिए।
कि बूट नहीं चाहिए ना, बूट नहीं चाहिए, बूट पहनना आता नहीं उनका। अरे भाई सूट तो चाहिए, बूट नहीं हो तो आर्मी, बोले वो भी नहीं चाहिए, जीरो एक्सपेंस। बोले निक्कर तक भी नहीं पहनते, ऊपर का गारमेंट क्या बोलते, ना अंदर ना ऊपर, कुछ नहीं। ये कैसे सन्नी है ना, ऐसी सन्नी है। होल आर्मी में एक नया धागा का खर्चा नहीं लगेगा। नो ड्रेसिंग, अरे भैया नो ड्रेस, नो अकोमोडेशन, नो फूडिंग, नो एनिमेशन, नो ट्रेनिंग, क्या लड़े ना लड़े, जीते। जीत कर गए किसको, ना त्रिलोक विजयी रावण के आर्मी को जीते। कुछ भी नहीं था, क्या था जिसकी वजह से विश्व विजयी त्रिलोक विजयी वीर के सेना को जीते, श्री राम शरणम। क्या था, एक ही बोले, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, केवल एक भरोसा, राम भरोसे जीत गया रावण। कुछ भी नहीं था, मैं बता एक एक करके, जीरो एक्सपेंस, आर्मी डिपार्टमेंट में नील एक्सपेंस। कुछ भी नहीं, उनको कोई गिफ्ट देना भी जरूरत नहीं, गिफ्ट लेकर के हनुमान को हिताधिक बोल करके हार दिए, मोती का परस का हार दिए, रत्नमाला। बोले इतनी बड़ी आपने मेहनत, बड़ा परमवीर चक्र मिलना चाहिए तुझे, इतनी बड़ी बहादुरी दिखा, एक हीरे का रत्न जड़ा माला दिए। बंदर था, टूट टाट कर भूल, और क्या करेगा, माला पहनेगा थोड़ी, उसका ना अलमीरा है ना गडरेज, ना कहाँ रखेगा, ना पहनता है। दांत में तोड़ 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 करके बोले ये क्या कर दिया तुम, कितने सुंदर ज्वेलरी रत्न माला दिया था, उसको तोड़ तोड़ कर काट फेंकाना, मुझे क्यों दे रहे थे, हम इसके लायक है नहीं, मुझे क्यों दे रहे थे आपने। तो एक भी नया पैसा खर्चा करने का नहीं। ये आर्मी है, जब से सृष्टि बना अब तक कहीं रिकॉर्ड में, इतिहास में सुने आपने, केवल श्री राम, यही एक ही ऐसे राजे हुए जिन्होंने जीरो एक्सपेंस में सबसे बड़ा एक्सपेंसिव किंग को हराया, है ना। वो किंग ऐसा था, रावण के पास इतने संपत्ति होता था, वो प्लानिंग करता था कि मैं धरती से स्वर्ग तक के स्टेयरकेस बनाऊंगा। अच्छा लिफ्ट नहीं सोच रहा था, स्टेयरकेस सोच रहा था, तब जो है लिफ्ट फिट नहीं चलता था, चढ़कर जाना होता मेहनत करके। बोला लिफ्ट नहीं स्टेयरकेस बनाऊंगा, चढ़ चढ़ के जाएंगे। बोले क्यों बनाएंगे स्वर्ग तक। बोला नियम मुझे पास करना है, क्या नियम पास करूंगा ना, जो पाप करेंगे वो स्वर्ग जाएंगे, जो पुण्य करेंगे इसे स्वर्ग से नीचे आएंगे, ये पास करना है। और इसके लिए काम शुरू कर दिया था हमने, प्रोजेक्ट लेकर के, ये प्रोजेक्ट लेकर के उसके ऊपर काम कर दिया था, और सीढ़ी बनना चालू हो गया था कुछ में। भगवान बोले यार ये पागल, मेरे बना हुआ नियम को तोड़ेगा, कैसे हो सकता। तो भगवान को आकर के उसको चेंज करना पड़ा, बोले नहीं चलेगा, जितना टर्लेट किया क्या और नहीं करेंगे तुझे। तो ये भगवान की विशेषता है, जो भगवान के शरण में जाएगा उसके लिए कोई गुण, कोई क्वालिफिकेशन, कोई स्ट्रेंथ, कोई जाति, कोई पाति, पढ़ाई, कुछ भी नहीं चाहिए। केवल भगवान के चरण में समर्पण, शरणागत हो जाओ। विश्व में कोई ऐसी शक्ति नहीं जो आपको बाधित कर सके, ये हरा सके। ये भगवान राम का उदाहरण था। वन के जंगली बंदर और भालू उन्हीं को लेकर के रावण जैसे वेल ट्रेंड आर्मी को परास्त करके आ गए, और सवन से नाश की, कुछ बाकी नहीं रहा। तो ये है भगवान राम की भगवत्ता, उनकी उदारता। इसमें भगवान चारों भाई हैं, राम, भरत और लक्ष्मण और शत्रुघ्न। इसमें से एक के बाद एक आदर्शता है। भगवान राम, उन्होंने अपने जीवन काल में देखा है कि मैं पितृभक्त हूं, आदर्श पुत्र हूं। एक पुत्र होने के नाते पिता की आज्ञा को हूबहू अक्षर से पालन करके दिखाऊंगा। पितृ आज्ञा को एग्जैक्ट पालन करके मैं दिखाऊंगा, वही मेरे श्रेष्ठ है। प्रजा को पालन करना, प्रजा को सुख देना और पितृ आज्ञा को पालन करना, बाकी सबको मीठा वचन बोलना, ये सब उनका गुण था भगवान राम का।
और उन्होंने कैकेयी और दशरथ, कैकेयी ने दशरथ से वर मांगा भगवान को, राम को वनवास 14 साल के लिए मेरे बेटा राजा बने। इस बात को सुन करके दशरथ महाराज से पहले प्रॉमिस कर लिए थे, लेकिन ये पता नहीं था कि ये वर मांगेंगे। जब ये सुने तो गिर पड़े, बोले ये क्या सुना। फिर गाली देने लगे, तुम ऐसा, तुम मुझे मारने वाले, खूब गाली दे, लेकिन वो तो गुस्सा होकर चिल्लाने लगी। तो अंततः सुमंत आए, जो भी झगड़ा झाटी भोर शाम से लेकर सुबह तक। अब ये किस दिन का घटना मालूम है? जिस दिन दशरथ महाराज को केवल 60,000 साल तक राजा बन चुके थे, तब उनको लगा कुछ समय होगा राजनीति करते करते। कितने साल के थे? 60,000 ईयर्स ओनली। तब उनको लगा कि अब रिटायरमेंट लेना चाहिए। वो फिर कैसे, वो आईना में तिलक कर रहे थे, देखे उनके बाल सफेद हो चुका है। इट्स टाइम टू टेक रिटायरमेंट नाउ। बोले मैं राजकुमार नियुक्त करके जाऊंगा। तो उस समय में भरत और शत्रुघ्न हो तो भाई, वो अपने ननिहाल में थे। घर में राजभवन में राम और लक्ष्मण थे। तो दशरथ महाराज सोचे कि नहीं, और लेट नहीं करना चाहिए। मैं तो पहले से दुनिया जानता है कि बड़ा बेटा तो राजकुमार होगा ही, उसको जो राजपद में घोषित करके मैं अभी रिटायरमेंट ले रहा हूँ। तो इसलिए उन्होंने राज्यसभा में जो बड़े बड़े उनके पारिषदगण थे, मंत्री पारिषद सब, उनके सभा के बोले मैं ये मन में विचार आ रहा है कि अब मैं बहुत समय राजनीति कर लिया, अब मैं बूढ़ा होने जा रहा हूँ, बाल पक गया है, तो अब मैंने राम को युवराज पद से अभिषिक्त करके मैं रिटायरमेंट लूंगा। आप लोग के क्या मत है? सब इतने जोर से ताली बजाए, इतने साधु साधु, वेल डन, इतने बढ़िया की। बोले कि महाराज बुरा ना माने, हम बात कहें। कई लोग क्या ना, हम तो कई साल पहले सोच रहे थे राजा क्यों नहीं करते। राम जैसे योग्य व्यक्ति को उनको लीडर बनाना चाहिए, लेकिन वो सीट खाली नहीं करते। बोले हम आपको बोल नहीं सकते थे, आप बोलेंगे अरे मुझे पसंद नहीं करते, इसलिए नहीं, आपको पसंद करते हैं, लेकिन राम राम है, उनका गुण गारिमा ऐसा है, उनको सब प्रशंसा की। तो दशरथ महाराज बोले तो फिर आप सभी लाइक करते हैं तो मैं भी लाइक करता हूँ। तो राम फिर युवराज बोले अरे और सोचना जल्दी कीजिए, कब करेंगे, कोई अच्छा तिथि, कौन सा दिन में उनका राजा राज्याभिषेक करेंगे। तो कुलगुरु वशिष्ठ थे, सूर्यवंश के कुलगुरु है महर्षि वशिष्ठ। वशिष्ठ को बुलाया, वशिष्ठ वामदेव जावाली, एक से एक त्रिकालदर्शी महात्मा थे, उनको बुलाया। वशिष्ठ जी बोले कि राजा राम के लिए कोई तिथि डेट ढूंढना क्या होता है? बोले क्यों? बोले जो काम राम के लिए करेगा वो सारे मंगल सब ढूंढ ढांड कर वहीं में आगे इकट्ठा हो जाएगा। बोले सारे ऑस्पिशियसनेस वहीं पे डाउनलोड हो जाएंगे, जो डेट है फाइनल करेंगे ना, फिर ना सुबह से शीघ्र काली कीजिए, कल हो जाएगा तैयारी ना। तैयारी हम तो पहले से रेडी करके रखेंगे, केवल आप ऑर्डर नहीं दे रहे थे, हम तो सामग्री रेडी कर रखें, क्योंकि आगे चल कर देते होना ही था, हमको पता था निश्चित। कब आप अनाउंस करते, बुरा मानते, हम बोलते ना, हम तो रेडी कर रखें। तो दशरथ महाराज के पास के हो गए, काल सुबह मेन फंक्शन होगा, भगवान राम का राज्याभिषेक होगा युवराज पद पर। तो वाइल्ड फायर की तरह मैसेज, जो ये मैसेज सुना जो थे पूरी राज्य में, सब अपना अपने जो बंधु बांधव जो जहां जहां कांदूर थे, इंडिया में थे, बोले फटाफट बैठ करके आओ फटाफट, ये चांस वांसी ने लगता है और नहीं मिलेगा। राम के राज्याभिषेक युवराज पद पर वांसी ने लगते हैं, दोबारा तो होंगे नहीं। ये फंक्शन को कभी मिस नहीं करना चाहिए। ये राम का राजा अभिषेक का जो दृश्य है, जो फेस्टिविटी दर्शन करना चाहिए। तो ओवरनाइट लोग रात 1 घंटा भी नहीं सोए, रात दूर दूर से चल पड़े, मसाल ला करके चले कि राम के राज्याभिषेक देखेंगे। लाखों संख्या में दूर दूरांत से भारत राज्य लोग राम राज्याभिषेक देखने के लिए आए। जो लोग थे देखना काल हम देखेंगे, इतनी खुशी होकर के घर सजाना, घर के सामने कलश और नारियल की और केला की पेड़ और क्या क्या सब
गेस्ट को वेलकम करना, घर को सजाना, इतने उत्साह से थे कि वो भी 1 मिनट रात नहीं सोए, वो भी रात नहीं सोए। सब इतने उत्साह उल्लास से खुशी से भर गए थे, तो तैयारियां कर रहे थे। कल जीवन की सबसे बड़ी दृश्य देखेंगे, हमारे सबसे प्रिय प्रभु राम को राज्याभिषेक होते हुए हम देखेंगे। युवराज को अभिषेक, वो हमारा नेता बनेंगे। इसके चलते सब परम प्रसन्न थे और सारे प्रसन्नता के कार्य कर रहे थे। घर सजाना, बढ़िया बढ़िया आइटम बनाना, कई गेस्ट, सभी के घर में गेस्ट फूल आते थे, सबका इधर उधर गेस्ट हाउस फुल था। कितने बड़े एक्टिविटीज होता था, दिन रात पूरा लाइट चल रहा है सब, जिससे रामादा का नाइट एक्टिव होता है ना सुबह, तो इसी चल रहा था एक्टिव उस दिन। अयोध्या राजभवन में भी सब जगह में उल्लसित होते थे, सजाई लाइट फेट डेकोरेशन होता था, कुछ होता था। तो महाराज दशरथ के 4 रानियां थी, पता है ना, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा और एक उनके जो असिस्टेंट थी कैकेयी की, मंथरा। तो जब ये सब चल रहा था चारों तरफ सजावट, बाकी सबके पास वॉइस मैसेज भेज दिए दशरथ महाराज ने, मैसेज किसी को मेल कर दिए, किसी को वॉइस मैसेज, किसी को फोन कर दिए कि ऐसे इवेंट है, गेट रेडी। लेकिन कैकेयी को नहीं बोले। क्यों? कैकेयी तीनों रानी में सबसे ज्यादा उनके प्रिय थे, तो बोलते थे उसको सबसे प्रिय, उनको फोन किया, पर्सनली जाकर बोलूंगा, ये मैसेज तो मैं खुद जाकर बताऊंगा उनको, इसलिए स्वयं बोल में जाने वाला ही हूँ, काम निपटा करके मैं जाकर खुद बोलूंगा, बाकी तो मैसेज दे दिया, तो यहाँ तो मैं खुद ही जाऊंगा, इसके लिए नहीं बताया था। खुशी से मैं दर्शन को जाकर पर्सनली बताऊंगा। और कैकेयी भी भगवान राम प्रति इतने स्नेह था उनका, अपने बेटे से भी ज्यादा उनके बेटे था भरत, भरत से भी ज्यादा स्नेह करते थे राम को। अब ये बात राम को पता था, ये बात दशरथ को पता था, ये बात कौशल्या को भी पता था। कौशल्या जानते मेरे पास इतना समय नहीं रहता, ज्यादा समय उनके पास रहता, वो जितने केयर लेता है इतना मैं भी नहीं लेता। माँ करके उनको बोलते थे राम, माँ कहने से कैकेयी को बोलते थे ज्यादा, कौशल्या के पास कम होता था, इतने उनका था। तो ये बात सभी राज्य में जानते, राजा भी जानता था, इसलिए बोलता मैं जाकर खुद बताऊंगा, कैकेयी बहुत खुश होंगे। तो राजा क्योंकि सारे कार्यकाल इतने बड़े इवेंट होगा, इसलिए सब कई प्रकार व्यवस्था कर रहा था, जाने में थोड़ा लेट। इसके बीच में उनके मेड आ गई मंथरा जी। मंथरा जाकर देखा क्या हो गया, आज सारे जहां देखता हूं लाइटेड है, डेकोरेशन है, क्या सब चल रहा है इधर। पता लगाया कि काल सुबह राज्याभिषेक होने वाले राम के राज्याभिषेक सुन करके जल भून गई है। जल भून गई समझते ना, उससे ईर्ष्या हो गया। मेरे मालकिन के बेटा तो भरत है, उनको राजा न बना करके उनको करते हैं। तो सीधा कैकेयी के घर में गई और जा करके उनको बताया कि क्या सो रही हो, तो अटकत राजा आने वाले हैं, तैयारी करते। बोला क्या है सब कर रहे हैं, पता नहीं तुझे क्या हो रहा है दुनिया में, कुछ ना क्या हो रहा है मुझे पता नहीं, कोई विशेषता। अरे पूरी अयोध्या सज रहा है, सब ये हो रहा है, इसे हो रहा है ना, क्या कोई विशेष काम है ना, तुझे पता नहीं। तेरा क्या तुझे सिखाऊं, राजभवन बैठ करके यहाँ फुल वाईफाई रहता है तो फिर भी नहीं देखा कोई मैसेज। नेटवर्क कभी डाउन नहीं होता, रॉयल हाउस है। बोले पता नहीं ना क्या ना, कल राम को राज्याभिषेक होने वाला है। इस बात को सुनकर के माता कैकेयी इतने खुश हो गई, एक रत्नहार निकाल करके कोई गिफ्ट में दे दिया। बोला थैंक यू, यू मी सच ए नाइस मैसेज, इतने अच्छा बात बताया तूने कि मेरे राम राजा होने वाले, इससे बढ़कर मेरे लिए शुभ खबर क्या हो सकता है, इतनी बढ़कर अच्छा खबर क्या मेरे लिए। कैकेयी बोला हाय मैं मर गई। बोला क्यों? बोला यही तो मेरा दोष है। बोला मेरा ही दोष, मैं जानता क्या तेरा दोष है ना, मैं आपके दुख सह नहीं सकती, यही मेरी कमी है। मेरे दुख तो मैं छाती में पत्थर रखकर सह लेती,
मुझे कोई दो बात गाली दे दे, कुछ मार पीट दे, मैं सहन कर लेती दुख भी, लेकिन तेरे दुख मेरे से देखा नहीं जाता, तेरे दुख मन से देखा नहीं जाता। और तू इतनी भोली भाली है, तुझे दुख दिखता ही नहीं, मुझे दिखता है। क्या दुख बना है? नहीं तो मुझे माला दे रहा है गिफ्ट में, तुझे पता नहीं राम राजा होगा तो क्या होगा। अरे प्रीचिंग करने लगा आंटी प्रीचिंग, कि राम अगर राजा बनेगा कौशली हो जाएंगे महारानी, तेरे पास तो राजा और आएंगे नहीं, तू बोलूंगी मेड, झाड़ू पोछा करोगी, मेड बनूंगी, ये सब करूंगी, और तेरे बेटे ये काम करेंगे। ऐसे बोलने लगी तो उनको बिल्कुल आवेश बना कर, ऐसे ना 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 मैं इसे कभी नहीं कर सकता, यही होना पड़ेगा, पक्का प्लानिंग है। बोले तुझे कैसे पता? ना देखो ना, सबके पास राजा ने मैसेज, उनके पास मैसेज दिया नहीं, क्यों छिप कर करना चाहते? जानते तुझे बताने से गड़बड़ हो जाएगा, तेरे बेटा ने, आपका बेटा जब नहीं है तभी करते हैं, तेरा बेटा होता है ऐसे थोड़ी करते, तेरा बेटा ननिहाल में है ही नहीं, ऑप्शन से तभी कर देना चाहते, तुझे मैसेज तक भी नहीं देते। ऐसे ये दुनिया के एक लक्षण है। अगर किसी को आप किसी मान में बुरा मान लिए, ये अच्छा नहीं लगता। एक बार आपने मान लिए तो जितने उनके काम दाम लक्षण आपके मन में सब देखा, सारे प्रमाण जुड़ा है, प्रमाण दिखाएंगे कि ये तुम्हारे बिल्कुल 100% विरोधी है। यदि ऐसा है नहीं, लेकिन आपको महसूस होगा ऐसा, ये प्रकृति ऐसा ही व्यवस्था करती है, सारी व्यवस्था करती है ऐसा। तो इसी को जान करके, और जैसे वो सोचते थे, कैकेयी को मंत्रा ऐसे बताने लगी, तो भड़काने लगी, इतने ज्यादा उठा बढ़ा दी। इसी कहते हैं कि सत्संग का प्रभाव, सत नहीं असत्संग, असत्संग इतने खतरनाक है, सत्संग उनके सामने कुछ बात नहीं। एक बकेट देसी गाय का दूध रखो गर्म करके बढ़िया से, उसमें केवल 2 ड्रॉप लेमन निचोड़, क्या होगा? हट जाएगा कि नहीं? पूरा 10 लीटर खत्म हो जाएगा 2 ड्रॉप में। इसी बोलते हैं कपट खटाई। खटाई जो है, कपटता है, फाड़ कर रख देता है, बिल्कुल बदल देता है। ये असत्संग। बुरी संगति में चले जाएं तो अपना कितने अच्छे गुण, अच्छे चरित्र सब फाड़ करके रख देगा, सब फाड़ देगा। मंत्रा मंत्रणा न होने से भगवान राम प्रति कितनी पवित्र भावना था कैकेयी का, कितने सेवा था, क्या ममता था, लेकिन इस कपटता घुस करके बिल्कुल बदल दिया राजा के प्रति, राम के प्रति। अरे इतने बढ़ा दी तो कोप भवन में चली गई उन्होंने। वो रात पूरी अयोध्या में सारे खुशहाली में तैयारी करते हैं कि काल सबसे मंगल दृश्य होगा, भगवान राम का राज्याभिषेक होगा, और राजा का घर में कोप भवन में रानी, राजा का सारा रात रो रो करके दुश्चिंता में, बिल्कुल बुखार, सेंसलेस होते हैं बार बार राजा दशरथ। भगवान राम को सुमंत गए, इतने बड़े झगड़ा हुआ। सुमंत सबसे ओल्डेस्ट मैच्योर उनके मंत्री थे, तो उनको बोले कि सुमंत जी संभालो, सिचुएशन इज वेरी क्रिटिकल, तो राम को बुलाओ। तो राम और सीता को भगवान ने, वशिष्ठ ने खबर भेज दी थी शाम को जाकर के, कल राज्याभिषेक होगा, आप आज रात फास्टिंग करना, डिनर मत लेना, कल सुबह उठकर जल्दी स्नान करना, ऐसे ऐसे तिलक करना, ये मंत्र पाठ करना, ये वस्त्र पहनना, ये सामग्री सब रखना, कल पूजा होने वाला है। तो इसलिए सब तैयारी करके फास्टिंग करके बैठे हैं सीताराम। मैसेज पहुंचा कि दशरथ महाराज बुला रहे हैं। राम सोचे मुझे अकेले बुला रहे हैं, सीता को बुला रहे हैं, दोनों साथ को बुलाते हैं? नहीं, केवल आपको बुला रहे हैं और किसी को भी नहीं, सीरियसली इमीडिएट आओ। कोई विशेष काम है, पिताजी बुला रहे हैं, विशेष काम करके गए। खुशी जा रहे थे, जाते समय किस प्रकार मूड में गए तो पता नहीं था। जाकर जब महल में पहुंचे, बोले महल में नहीं, कोप भवन में। भाई अब जाकर देखे तो दुर्दशा, राजा तो बिल्कुल ऐसी पड़ा है, और कैकेयी भी सब निकाल करके ऐसी पड़ी। क्या है, राजा तो देख कर रोते बोल नहीं पाते थे। कैकेयी ने बोली मेरे से तुम राजा के वचन दिया, बोल नहीं पा रहे हैं, ऐसी ऐसी बात है। राम बोले कि मैया कैकेयी माता,
आप पिताजी को क्यों कष्ट दिए इसके लिए मुझे बोल देते, आपका क्या विश्वास नहीं, आप बोलने से मैं नहीं करूंगा। आप मुझे बोलते तो जंगल में चले जाओ 14 साल 28 साल में भी चला जाता, तो इसके लिए पिताजी को क्यों एक कष्ट दिया, इतने सर क्यों, मुझे फोन करके मैसेज करके मैं चला जाता, बोलना भी नहीं जरूरत था। मैं तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं, आपका आज्ञा को मैंने अवज्ञा किया, कभी ऐसे हुआ ना। फिर क्यों ऐसे किया? इसको अगर विचार करके देखा जाए, जिस राज्य के युवराज के रूप में, पुत्र के रूप में चतुर्भुज भगवान स्वयं नारायण, राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न चारों भगवान प्रकट हुए थे यहाँ पे, तो हम हमेशा कहते मंगल भवन अमंगलहारी। जो मंगल के स्टोर हाउस है, अमंगल को हरने वाले हैं, और उन्हीं के राज्य में, उन्हीं के घर में, उन्हीं के अभिषेक के दिन आज सुबह के सूर्य उदय हुआ, तो सबसे बड़ी मंगल ना अमंगल हुआ। क्या हुआ? सूर्य उदय हुआ तो बस तो बोलते कि सूर्य आज उदय न हो, आपके कुल में इसे गड़बड़ होने जा रहा है, तो राइजिंग सनराइज नहीं होना चाहिए, लेकिन सूर्य उदय हुआ, पूरे राज्यवासी दौड़ कर आए, रोते ही रहे, रोते ही रहे। सबसे बड़ा दुख, जिनको सबसे बड़ा सुख मानते थे, कितने कितने बंधु वर्ग दूर दूरांत से कितने उत्साह से भर के आए, केवल रोए। माता ने सब अयोध्या की जो दशा है, भगवान राम उनके चला जाने के समय में कुआं से पानी सूख गया, पेड़ से पतझड़ हो गया, ये बसंत में पतझड़ हो गया। पतल न्यू लीव्स आता है, लेकिन वो भी ऐसे होने लगा। तो इतने दुख की समय आ गया, हम कैसे कहते हैं कि मंगल भवन है? हाउ टू प्रूव इट? जिनके खुद के काम में, खुद के घर में, खुद के माता पिता भाई से ये हाल है, और स्टोर हाउस ऑफ ऑस्पिशियसनेस। तो उन्होंने सुबह हुआ तो ये सब घटना हुआ, चले गए, बर्थडे दिन हो गए राम लक्ष्मण। जब राम करके बोले कि नहीं आज ही जाना होगा, सूर्य आवाज सनराइज हो गया, अब होते होते जल्दी अब निकलना पड़ेगा, आप फटाफट जाओ, ड्रेस चेंज करो, ये राजवेश नहीं, बलकल प्लेस बनवासी पूजे को वेश पहन कर। भगवान राम कई बोल करके ओके कौशल्या माता के घर में गए। कौशल्या माता ने ब्राह्मण भोजन करा रही थी ओपनली, क्योंकि आज मेरा बेटा राजा बनेगा, खुशी के मारे डोनेशन दे रही थी, अब बहुत कार्यक्रम कर रही थी। इस समय राम जाकर पहुंचे, अब उनसे परमिशन मांगे तो रो कर फेंट हो गई, ये क्या हो गया, ये कैसे हो सकता है, हम कहें पॉसिबल। लेकिन फिर भी भगवान राम समझा करके आए, आ करके बोले ठीक है, माँ से तो समझा दिया, अभी सीता से बोलना पड़ेगा। सीता जी के पास आए, सीता जी बोले पिताजी क्या बोले, अकेले चले गए थे आपने, मुझे नहीं बुलाए थे। अब बोले अब सुनो ध्यान से, मुझे बुलाए थे, मुझे अभी जाना है। अब तब राज्याभिषेक था। हाँ, अब राज्य का राजा नहीं बनाए, वन के राजा बना दिए जंगल के राजा बना मैंने, और राज्य में राजा मैं नहीं बना, मैं तो वनवासी हो जाऊंगा। अब भगवान राम बोले कि तुम मेरे पत्नी हो और मैं तुझे बता रहा हूँ, अब मुझे तो जाना है, मैं ड्रेस चेंज करने जा रहा हूँ, माँ से परमिशन ले लिया, आई एम गोइंग। सो आपको रहना होगा, ऐसे भरत अच्छा लड़का है मुझे पता है, आप उनसे एडजस्ट करके कोऑपरेट करके रहना। अगर आपको कोई भी बुरा लगता भी है भरत के व्यवहार से, तो देन मैं आपको परमिशन देता हूँ एडवांस, यू कैन गो बैक टू योर होम। जब तक वो वापस नहीं आता तब तक अपने आप घर में जा सकते हैं, मतलब जनकपुर जा सकते हैं। इतना कह करके बोले अब मैं अभी होकर के आया, पिताजी सीरियसली इल, तबीयत खराब है, तो मैं तो जा रहा हूँ, भरत शत्रुघ्न नहीं है, लक्ष्मण पता नहीं क्या करेगा, तो आपका दायित्व है सास ससुर को देखभाल करना, घर परिवार चलाना, आप ही सबसे बड़ी बहू हो घर के, आप ही सबको संभालना करना है। ऐसे उपदेश देकर हम निकलने वाले थे, सीता जी बोले कि
1 मिनट मेरे भी सुनेंगे कि नहीं? आप तो बोल दिए सारे, मेरे भी तो 1 मिनट सुन लीजिए। बोलो क्या बोलना है। तो सीता जी बोलने लगी। सीता जी जो बोली, भगवान राम का बोली बंद हो गई। वो कुछ जवाब नहीं दे पाए, उत्तर नहीं दे पाए। बोले, सीता जी ने बोली, प्रभु आप मुझे बता रहे हैं ये सब धर्म पालन करने के लिए, और एक पतिव्रता स्त्री का धर्म होता है पति का आदेश को पालन करना, है कि नहीं? और आप मुझे बोलते हैं सासुर ससुर ननद भाई भैया भाभी, ये जो उनको सब देखभाल करना है। बोले ये सब सास ससुर किसके चलते हैं? आपके चलते हैं। आपका साथ मेरा संबंध ना होता, ना कोई सास होते, ना ससुर होते, ना भैया, ना भाभी, ना ननद, ना कोई होते नहीं। तो आप नहीं रहेंगे तो संबंध कैसे टिकेगा? आपके चलते सब हुआ था, आप नहीं रहेंगे तो कुछ नहीं रहेगा। तो आप रहेंगे जंगल में, मैं ही रहूंगा राजभवन में पलंग में। यही पतिव्रता नारी का धर्म है। बोले आपको पता नहीं, मुझे पता है। हम वैष्णव सदाचार कोर्स कर चुके हैं। तो मुझे पता है, क्या नहीं पता है। ऐसे नहीं हो सकता। आप मेरे पतिदेव हैं, आप कष्ट में रहेंगे, मैं सुख में रहूंगा राजभोग में? नहीं, मेरा तो एक ही धर्म है कि आपकी चरण के शरण में रहूंगा, आपकी सेवा करूंगी। यही मेरा सबसे बड़ा धर्म। इसी से सास ससुर नंद घर घर सभी का सेवा इसी से होता है। बाकी आपको छोड़कर अलग से सेवा किसी का सेवा नहीं होता। यही मेरा नियम है। तो रामचंद्र समझाने लगे, नहीं 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 ऐसा मत करो। बोले आप मुझे बोलते हैं आपके आदेश को पालन करने के लिए, आदेश पालन करेंगे जब मैं जी करके रहूंगा तभी ना। बोला आपको क्या इतने विश्वास नहीं है कि आपको बिना मैं जी सकता हूं? आप छोड़ के मुझे चले जाएंगे तो प्राण निकल जाएगा मेरा। तो डेढ़ बॉडी में तो कुछ धर्म पालन होगा ही नहीं, सास ससुर के किसी का सेवा नहीं होगा। तो बेटर है कि आपका साथ रहूं जी करके, कुछ तो आपको काम करो, कुछ करो। तब टाइम हो गया। ओके, तो रामायण जैसे 100 करोड़ प्रकार की, उसका पूरा कैसे होगा? यही हम पूरा करना ही पड़ेगा, है ना? नहीं त्वया सीता पतिर मोह, सीता के पति सीता के साथ कैसे वार्ताव किए, वो फिर कभी समय मिलेगा तो वार्ता करेंगे। हरे कृष्ण। His Holiness Bhakti Asray Vaishnav Swami Maharaj की, श्री रामचंद्र भगवान की। तो हमारे पास टाइम का कॉस्टली टाइम, we cannot take any question answer. We should be drive करना by the hands of Maharaj. तो मैं रिक्वेस्ट करेगा माता जी इसको पहले ड्राई प्रसाद देने के लिए, तो लाइन में अच्छे से आइए, उसके बाद प्रभु जी इसको। And we have to do it very quickly because Maharaj has another class. Our class. So, Maharaj, please you can. जय श्री राम। Tejas Prabhuji, Maharaj, one devotee wants to take mala from your hand. Okay. And there are few couple. Full mala. Please, you can come here. Yeah. Diptimati Mataji. Yeah, please. आप आगे आगे. You go ahead. You go ahead. आप आइए. Saranya, please come. They are newly married, Maharaj. The parents are devotees. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, नहीं, उसके पास माला है, लड़की के पास माला है, लड़का अभी स्टार्ट कर रहा है। अरे वो टेक ब्लेसिंग्स फ्रॉम महाराज। निरंजन, वेरी निरंजन।
Maharaj, he was in Gurukul, Mayapur earlier, and his birthday today. Niranjan, Bhakti Niranjan, now he is in Abu Dhabi. 9th year Sevadari. So Maharaj is going to take the Jai Prasad quickly. Hari Bol. Hare Krishna. Mataji, please come quickly. We have to wind up very fast. Thank you so much. Hare Krishna. Some feedback. Padmaja. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hari Bol. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. उसमें डालते हैं Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna,
Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna